وزیر اعظم کی زیر قیادت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ عمران خان نے سیاسی کمیٹی کو پرہیز الہی کی وزیر اعلیٰ نامزدگی پر اعتماد میں لے لیا۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد سمیت مسلسل بدلتی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ استعفیٰ دینے کے بعد سردار عثمان بزدار کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں وزارت اعلیٰ کا منصب عوام کی امانت ہے، ملک و قوم اور پارٹی کے مفاد میں استعفیٰ دیا۔ عمران خان کا سپاہی ہوں اور رہوں گا۔ نون لیگ کے فلاپ ترین جلسے کے بعد رانا ثناءاللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لیگی قیادت بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک گیند سے اپوزیشن کی 3 وکٹیں اڑا دی۔ رینالہ خرد کے نواحی گاؤں 91L میں قتل کی واردات۔ نامعلوم ملزم نے مقبول نامی 70 سالہ شخص کو کلہاڑی کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے جلال پور کھاکی میں کھیتوں سے خاتون کی تشدد شدہ لاش برآمد۔ اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ چونیا میں محکمہ اینٹی کرپشن ٹیم کی کارروائی۔ یونین کونسل تلونڈی کی سیکریٹری محمد اشرف کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم اشرف کام کرنے کے لیے لوگوں سے رشوت لیتا تھا۔ اور کرونا کی 5ویں لہر کی شدت دم توڑنے لگی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.99% ریکارڈ کی گئی۔ وائرس سے ایک شخص جاں بحق، مزید 269 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ کرونا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 30,347 ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لکی مروت میں پولیس مقابلے کے دوران 4 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ دیکھیے شریف اللہ خان کی رپورٹ۔ لکی مروت میں پولیس مقابلے کے دوران CTD کو مطلوب 4 ملزمان کو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مبینہ دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، 3 کی شناخت ہو چکی ہیں۔ لکی مروت پولیس کو اطلاع ملی کہ مبینہ دہشت گرد گروپ تانزو کے علاقے میں شیری خیل کی پہاڑوں میں موجود ہیں، جس پر پولیس نے معاونت کے لیے سیکورٹی فورسز سے مدد لے کر تلاش شروع کر دی اور رات کئی شیری خیل کی پہاڑوں میں پولیس مقابلہ شروع ہوا۔ پولیس مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ مارے گئے دہشت گرد CTD اور مقامی پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مارے گئے دہشت گرد 3 ماہ قبل FC اہلکار کی قتل میں بھی مطلوب تھے۔ مارے گئے دہشت گردوں میں آفتاب عرف آفتابی، فضل رحمان اور عالم اللہ کی شناخت ہو گئی ہیں، جبکہ ایک دہشت گرد کی شناخت ابھی نہیں ہوئی۔ ماری گئی دہشت گردوں میں 3 کا تعلق گاؤں شیری خیل لکی مروت سے ہیں، جبکہ ایک دہشت گرد کا تعلق جنی خیل بنو سے معلوم ہوا۔ کیمرامین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ، کوہ نور نیوز، لکی مروت۔ رینالہ خرد کے نواحی گاؤں 91L میں قتل کی واردات۔ نامعلوم ملزم نے مقامی گھر میں گھس کر مقبول نامی 70 سالہ شخص کو کلہاڑی کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔
शुजाबाद के नवाही इलाके जलालपुर खाकी में खेतों से खातून की तशद्दुद शुदा लाश बरामद हुई। अहल खाना के मुताबिक खातून घर से खेतों में लकड़ियां लेने गई थी और काफी देर तक घर वापस ना आई, जिस पर अहल खाना ने परेशान होकर खातून की तलाश शुरू कर दी और करीब ही खेतों से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। इतला मिलते ही पुलिस थाना सदर ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, चूनिया में महकमा एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। यूनियन काउंसिल तलवंडी के सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अशरफ काम करने के लिए लोगों से रिश्वत लेता था। सरगोदा में महकमा एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। जाली अदालती नोटिस बनाकर सादा लोगों को लूटने वाला थाना सैटेलाइट टाउन का कांस्टेबल गिरफ्तार। मुलजिम साजिद ने 10,000 रुपए रिश्वत वसूल की थी। मुतासरा शख्स ने डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा आसिमा एजाज चीमा की दरख्वास्त दी, जिसमें कहा गया था कि कांस्टेबल मोहम्मद साजिद ब्लैकमेल करके रिश्वत मांग रहा है, जबकि मेरा कोई अदालती केस नहीं चल रहा। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने मोहम्मद अकरम सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोदा को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर सर्कल ऑफिसर ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में मोहम्मद साजिद से 10,000 रुपए के निशान ज़दा नोट बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया। कसूर थाना मुस्तफाबाद की हदूद में फिरोजपुर रोड पर मुसल्ला डाकू ने शादी हॉल में घुसकर बारात को लूट लिया। इकबाल नगर के करीब निजी शादी हॉल में तकरीब जारी थी कि 7 डाकू ने पूरी बारात को जरगामाल बना लिया। मुसल्ला डाकू ने खवातीन से लाखों रुपए मालियत के जेवरात छीन लिए। दुल्हन समेत बारात में मौजूद दर्जनों खवातीन के कानों से बालियां नोचकर तशद्दुद भी किया। डाकू ने बारातियों से मोबाइल फोन और नकदी भी छीन ली। वाक़े के खिलाफ मुतासरा अफराद का फिरोजपुर रोड ब्लॉक करके एहतजाज जारी। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नाजरीन, मुआशरे में मुनशियात का इस्तेमाल जोर बरोज बढ़ता जा रहा है। नौजवान नस्ल मुनशियात का इस्तेमाल से तबाह हो रही है। फैसलाबाद में तरके मुनशियात सेंटर आवाम की खिदमत में मसरूफ है। मजीद जानते हैं महमूद अहमद से। जी महमूद अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मनशियात का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें एज कोई लिमिट नहीं है, बच्चों में, बड़ों में और बुजुर्गों में सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ नज़ीर मलिक मौजूद हैं, जो कि एक ऑनर है, इंसार मनशियात हॉस्पिटल चला रहे हैं। आइए इनसे डिटेल में जानते हैं। सर बताइएगा, जो आपके पास यहाँ पे पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जो आप एडमिट करते हैं, उनकी एज क्या होती है और उनमें किस लेवल का नशा कर रहे हैं और उसकी कंडीशन क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे पास जो पेशेंट नए आते हैं वो 13 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा तादाद है। और आजकल जो खौफनाक नशा जो इस वक्त ज़्यादा फैल रहा है वो आइस है। और आइस पीने के बाद बंदा 3 से 4 दिन सोता नहीं है, वहम और गुस्से का शिकार रहता है। और इस वजह से घरों के अंदर कत्ल तक की नौबत आ चुकी है। भाई को कत्ल कर दिया, ये भी रिपोर्ट हो चुका। माँ तक का कत्ल इसमें मौजूद है, क्योंकि नशा लेने के बाद पेशेंट की जो दिमागी हालत है ना, उसके कंट्रोल में नहीं रहती। तो फिर वो कोई ऐसा काम कर गुजरता है जिसमें पूरी फैमिली के लिए मसाइल खड़े होते हैं। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहूँगा कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। नौजवान नस्ल, यूनिवर्सिटी के लोग आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी हमारे साथ ही है, वहाँ पे एक डॉक्टर तक इसमें मुलव्वस हो चुके हैं कि वो नशे का शिकार हैं। इस तरह बेशुमार लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर इस पर काबू ना पाया तो ये वबा पूरे मुल्क में फैलेगी और नौजवान नस्ल 13-14 साल से लेकर 25 साल तक फिर वो स्ट्रीट क्राइम में भी वो मुलव्वस होते हैं और जराइम में भी, और इसके साथ सेक्स एडिक्शन में भी मुलव्वस हो जाते हैं। इसलिए इसको गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना होगा। जी, जैसा कि मलिक नज़ीर साहब का कहना है कि जो आइस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है नशा, और जो इसकी एज है वो 13 से 25 साल तक के जो पेशेंट है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो ये वबा बन जाएगी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी। जी महमूद अहमद, आगाह करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि नून लीग के फ्लॉप तरीन जलसे के बाद राना सनाउल्लाह अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। लीगी क़यादत बुखलाहट का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक गेंद से अपोजिशन के 3 विकेटें उड़ाई हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि जमहूरियत के खातिर उस्मान बुज़दार की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब ने हर शोबे में बेमिसाल तरक्की की।
चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला नामजदगी से अपोजिशन के चेहरे पर वाज़े मायूसी दिखाई दे रही है। परवेज इलाही हुकूमती इत्तेहादियों और नून लीग के बेशतर अरकान की हिमायत से बआसानी मुंतखब हो जाएंगे। जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर हम ख्याल ग्रुप वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। नून लीग को पंजाब में एक बार फिर शिकस्त दो चार होना पड़ेगा। नून लीग की क़यादत शर्मिंदगी का टोकरा सर पर उठाने के लिए तैयार है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओकाड़ा के शहीद इलेक्ट्रीशियन सखावत अली के अहले खाना को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में खुशामदीद कहा और पंजाब हुकूमत की तरफ से 4 लाख रुपए का माली मुआवनत का चेक शहीद अहलकार की बेवा को दे दिया। उन्होंने शहीद अहलकार की बेटी को डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पर बिठाया और देर तक शहीद के बच्चों से गुफ्तगू करते रहे। डिप्टी कमिश्नर सखावत अली के 3 बेटियों और 1 बेटे को खुद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में लेकर गए और डीपीएस स्कूल एंड कॉलेज में उनका फ्री दाखिला करवाया। उन्होंने कहा कि सरकारी जिम्मेदारी अदा करते हुए अपनी जान देने वाला अहलकार महकमे की पेशानी का झूमर है। इनकी कुर्बानी किसी सूरत रियायगा नहीं जाएगी और इनके खानदान की देखभाल भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सखावत अली इलेक्ट्रीशियन शहीद के बाकी सर्विस की पूरी तनख्वाह उसकी अहलिया को मिलती रहेगी, जबकि दीगर वाजिबात भी उनको जल्द अज जल्द अदा कर दिए जाएंगे। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में पेशावर के ताजरों का आवाम को खुसूसी रिलीफ देने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रमज़ानुल मुबारक में आवाम को खुसूसी रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर तफसीली बातचीत की गई, जिसके बाद फैसले किए गए कि मौजूदा महंगाई, तेल और यूटिलिटी बिल्स में इजाफे के बावजूद रोज़मर्रा इस्तेमाल की 5 अशिया की कीमतों में कमी की गई है, जबकि 8 अशिया की कीमतों को बरकरार रखा गया है। माह रमज़ान में अशिया की कीमतों में कमी का फैसला ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर पेशावर की खुसूसी दरख्वास्त पर किया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का गवादर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। अल नवीद नामी कश्ती और 4 माहीगीरों को बचा लिया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से अनवर बख्शी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ग्वादर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्वादर में PMSA बेस ने ग्वादर के करीब एक कश्ती को हंगामी हालात में बचाया। ग्वादर के रहाशी रहीम बख्श ने बताया कि उनकी कश्ती अल नवीद रजिस्ट्रेशन नंबर 1676 4 एहलकारों के साथ लापता है, जिसमें उनका बेटा नवीद बतौर नाखुदा शामिल है। PMSA ने फौरी तौर पर अपनी बूट रवाना की और सरफ बंदर के करीब बताए गए मकाम की तरफ बढ़ गए। शाम 5 बजे के करीब PMSA के बूट ने कश्ती को हंगामी सूरत हाल में पाया। PMSA ने अमले को पानी, खुराक और उदयत फराहम की और कश्ती में फंसे हुए अमले के साथ हिफाजत ग्वादर फिशरी जेटी तक पहुंचा दिया। बादेजान नाखुदा ने बताया कश्ती 26 मार्च को ग्वादर से सरफ बंदर के करीब माहीगीर के लिए रवाना हुई थी, तहम तेज हवा के बाद कश्ती का इंजन नाकारा हो गया। ग्वादर माहीगीर इत्तेहाद रेस्क्यू को सराहते हुए कहा कि PMSA माहीगीरों हमेशा जवाबदार है। PMSA समंदर में जिंदगी की हिफाजत और तमाम आफात में हमारे माहीगीरों और उनके कश्ती को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंटरनेशनल अफेयर्स मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सैयद अहमद ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पार्टी अमूर के अलावा दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। आपको बताएं, इस मौके पर PMLN इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर इसहाक डार भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट में वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि पार्टी वर्कर्स के लिए उनके दिल में मोहब्बत बहुत है और वो उनकी पार्टी के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते।
शेख सईद अहमद ने कहा कि सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट में लाखों पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून को अपनी आवाज़ समझते हैं और पार्टी बयानिए के साथ खड़े हैं। मुलाकात में इसहाक डार का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है और यहाँ मुकीम पार्टी वर्कर्स हमारा सरमाया है। कराची में सहाफती और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज कराची सैयद सज्जाद अली शाह ने भी खुसूसी शिरकत की। देखिए सहाफत और कारोबार में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात, बिजनेस कम्युनिटी, फलाही इदारों को तुमसे है पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब कराची के मुकामी होटल में मुनक्किद की गई, जबकि कोहिनूर टीवी के ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद अली शाह को सहाफत में बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का इनेकाद निजी टीवी एंकर साजिद हुसैन की जानिब से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी थे। तकरीब में DIG जेल खाना जात शीबा शाह, मारूफ कारोबारी शख्सियात मिर्जा अख्तियार बेग, मिर्जा इश्तियाक बेग, आसिफ समसम, टिप्टी रहनुमा मीर समद समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद सज्जाद अली शाह का कहना था, इस तरह की तकरीबात से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। अरशद सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के नवाही इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से राना इमरान नामी शख्स जख्मी हो गया, मुलजिम फरार हो गए। आपको बताएं, जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने राना इमरान के वालिद की मुद्दत में 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान में मोहम्मद तोकीर, मुजम्मिल, जमीर और एक नामालूम शख्स शामिल है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तनसाजी के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर सज्जाद जोखियों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके गुलशन हदीद में यूनाइटेड इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और ई कम्प्लेक्स कॉलेज के इश्तराक से तनसाजी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में कराची भर से मुख्तलिफ क्लबों के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में शिरकत की और मिस्टर गुलशन हदीद और मिस्टर बिन कासिम के टाइटल के लिए जोर आजमाई की। तकरीब में अकबर खान, गुल मोहम्मद खान और इमरान अहमद ने बतौर मुनसिफ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर साजिद जोखियों ने कहा कि मुझे भी बॉडी बिल्डिंग का शौक था, लेकिन मसरूफियात के बायस ये शौक पूरा न हो सका। इन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद होना चाहिए और हम ऐसे मुकाबलों के लिए नौजवानों का भरपूर साथ देंगे। तकरीब में साबिक मेंबर जिला कौंसिल कराची आगा तारक पठान, मीर अब्बास तालपुर, कारोबारी शख्सियत और ई कम्प्लेक्स कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद शफीक, इम्ताज जोखियो, नजीर सियाल, सफदर भट्टी व दीगर ने शिरकत की और प्रोग्राम के मुंतजमीन कामरान अहमद और सज्जाद सोलंकी की काविशों को सराहा। कैमरामैन ममताज चांडियों के साथ राजा बलोच, कोहिनूर। रावलपिंडी में रहनुमा मुस्लिम लीग नून रशीद खान ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग BP 14 के सदर मेंबर कैंप बोर्ड रशीद खान ने 28 मार्च को रैली के हवाले से कारकुनान मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, इमरान न्याजी करप्शन, महंगाई के तूफान की वजह से अवाम और अपने हकीकी नुमाइंदों में अपना एतमाद खो चुके हैं। अवाम को इस जालिम हुकूमत से निजात दिलाने के लिए लाहौर से चलने वाली रैली का रावलपिंडी में भरपूर इस्तकबाल करेंगे। उनका कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून BP 14 का मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जो रैली आ रही है 26 मार्च को लाहौर से मरियम नवाज साहिबा और मियां हमजा शहबाज साहब की क़यादत में लाहौर मरी रोड रहमानाबाद पे आना है। हम लोगों ने इंशाअल्लाह रावलपिंडी वाले ने कचहरी चौक में उनका इस्तकबाल कर रहा है कि किसी एक बंदे की कोई और लालच नहीं है, ना लेना देना है। वो क्यों छोड़ गए हैं? छोड़ इसलिए गए हैं कि 4 साल में इसने पाकिस्तान को जो तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है। आज एक गरीब घर में उसकी रोटी नहीं पूरी हो रही, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा परेशान है और इस हवाले से उसके अपने बंदे, जिस पार्टी की बुनियाद ना हो वो पार्टी इसी तरह खत्म होती है। आप यकीन जाने कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हमारे पास 50 अरकान की इतला है PTI के जो हमारे साथ खड़े हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम भी अपना कृष्ण कम्युनिटी के साहब से एक
कैंप लगाएंगे मई रोड पर, जिससे हम लोग मरीज मुशावशी का उनके साथ मुकम्मल ताउन का यकीन लाते हैं। और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी आर टू जेड मुस्लिम उनके साथ है और इंशाअल्लाह ताला इस माल मार्च को हम शाना बशाना इसके लॉन्ग मार्च को हम कामयाब करेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। कराची में मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। राजा बलोच की रिपोर्ट देखिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि हुकूमत सिंध अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कराची के इलाके सऊदाबाद से मली टैंकी तक नई शाहराह बनाने के तामीराती काम के आगाज के दौरान किया। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कराची के शहरी इलाकों की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीहात हैं कि कराची के शहरी व देही इलाकों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए जाएं। इनका मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से महदूद वसाइल में सिंध हुकूमत कराची के अवाम को रिलीफ देने में मशगूल है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद, MPA यूसुफ बलोच, मीर अब्बास तालपुर, आगा तारक पठान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मुमताज चांडियो के साथ। जंड में ट्रामा सेंटर इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। ट्रामा सेंटर फाल ना होने के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं शहजाद कमर की रिपोर्ट। तहसील जंड, जहां पर शहर में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तामीर होने वाली ट्रामा सेंटर की इमारत किसी मसीहा की मुंतज़िर है। तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख रुपए की खतीर रकम से इलाके की तेल और गैस की रॉयल्टी से तामीर होने वाली इमारत में मकड़ियों ने जाले तो बना लिए, लेकिन फाल ना हो सकी। इलाके की सियासी कायदीन की अदम तवज्जो के अलावा इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से पसमानदा इलाकों के लोग भारी खराजात करके दूर दराज गाँव से इलाज के लिए जंड आते हैं और ज्यादातर इमरजेंसी केसेस को अटक या पिंडी रेफर कर दिया जाता है। चूँकि जंड से अटक या रावलपिंडी जाने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात मरीजों की डेथ हो जाती है। महकमा हेल्थ, DCO अटक और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि ट्रामा सेंटर को फहाल करने के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की जिंदगियां बचाई जा सकें और गरीब लोगों का इलाज मुमकिन हो सके। शहजाद कमर शाकिर, कोहिनूर। कराची में अवामी तफरीह के लिए म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली। लोड शेडिंग और महंगाई से तंग आई हुई कराची के अवाम के लिए पोर्ट ग्रैंड में इवन एंटरटेनमेंट की जानिब से एक शानदार म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया, जिसको पॉप जिला का नाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर सिंगर्स यंग स्टनर्स हसन रहीम, दानियाल जफर, बोल जानी, राज, हसन दारबुका, शार और DJ सैनपाई ने शिरकत की। इस इवेंट में सिंगर्स ने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस पेश की, जिसे अवाम ने खूब एंजॉय किया। अवाम का कहना था कि इस तरह के शो कराची में होते रहने चाहिए, जिससे हम लुत्फ अंदोज हो सकें। इमरान अली, कोहिनूर न्यूज, कराची। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं, वजीराबाद के मुकामी हॉल में तलबा के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी इशफाक अहमद वड़ाइच समेत तलबा, उनके वालिदैन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी इशफाक अहमद वड़ाइच ने कहा कि किसी भी मुआशरे में जहालत का खात्मा तालीम से ही मुमकिन है। तालीम से इंसान को शऊर, अक्ल फहम, इदराक, मुस्बत सोच, आला इखलाक, अच्छा किरदार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलती है। हमारा मजहब हमें माँ की गोद से कब्र की लहद तक इल्म हासिल करने की तलकीन करता है। मुल्क में निजी तालीमी इदारों की कोशिशों की वजह से मयार तालीम तेज़ी से बेहतर हो रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा नजर आएगा। तालीम याफ्ता कौम ही खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। बच्चों को तालीमी मैदान में अच्छा माहौल, बेहतर सहूलियात फराहम करके इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है।
حبیبآباد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کی صدارت پیر سائیں سردار احمد عالم نے کی۔ محفل میلاد میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کرتے ہوئے اپنے دلوں کو یاد مصطفیٰ سے منور کیا۔ محفل کے اختتام پر حاضرین محفل کو بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے 5 ٹکٹ دیے گئے۔ محفل میلاد میں ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی اور اندرونی اور بیرونی آفتوں سے بچنے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں رمضان پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ ماہ رمضان میں آٹے پر 2.5 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ رمضان المبارک کے دوران صوبے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے دستیاب ہوگا۔ رعایتی آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب ہوگا۔ رعایتی آٹا صوبے بھر میں سیل پوائنٹس اور سینٹرز کے علاوہ سستے رمضان بازاروں میں بھی دستیاب ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی رمضان بازار انتظامیہ کی جانب سے فعال کر دیے گئے۔ استعفیٰ دیتے ہی رمضان بازار سے عثمان بزدار کی تصاویر غائب ہو گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بغیر تصاویر والے بینرز اور فلیکسز رمضان بازاروں میں آویزہ کر دیے گئے۔ رمضان بازاروں میں 3 روپے سے 142 روپے تک فروٹ سبزیوں پر ریلیف دیا گیا ہے۔ مارکیٹ سے کم نرخوں پر اشیاء رمضان بازاروں میں فراہم کر دی گئیں۔ الہ آباد میں ڈی پی او قصور نے عوام کی حفاظت کے لیے 8 پولیس ملازم اور 4 نئی موٹر سائیکلیں فراہم کر دیں۔ پولیس ملازم 24 گھنٹے شہر میں گشت کریں گے۔ ایس ایچ او الہ آباد حافظ عاطف نذیر کی درخواست پر بڑھتی ہوئی وارداتوں اور جرائم کنٹرول کرنے کے لیے ڈی پی او قصور نے 4 نئی موٹر سائیکلیں اور 8 پولیس ملازم فراہم کیے۔ پولیس جوانوں کی حفاظتی سامان، اسلحہ اور وائرلیس سیٹ بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او الہ آباد نے کہا ہے کہ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور کاروباری مراکز ہونے کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد زیادہ تر اپنی وارداتوں کے لیے الہ آباد کا رخ کرتے ہیں۔ تاجر طبقہ عدم تحفظ کا شکار تھا، گشت کے نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ قصور میں رشید نامی شخص کے قتل کا معاملہ، پولیس نے آصف نامی ملزم اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقتول رشید کے ملزم آصف کی بیوی کے ساتھ مراسم تھے، جس کی رنجش پر ملزم آصف نے رشید کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے دونوں ملزمان کو ریمانڈ حاصل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ گجرانوالہ میں کھیالی سبزی منڈی کے قریب حادثہ، سڑک کنارے کھیلتے 2 بچے ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں 10 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی، جبکہ 3 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے نعش اور زخمی بچے کو اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں رمضان بازار فعال کر دیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ رمضان بازار ضلع بھر میں 29 مارچ تک کیمپ کر کے فنکشنل کر دیا جائے، اس سلسلے میں تمام انتظامات بہتر انداز میں مکمل کیے جائیں۔ وہ اپنے دفتر کمیٹی روم میں رمضان بازار کے قیام کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر نذیر کھچی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس فاروق قمر، ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز، سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان، ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز محمد زبیر عباسی، ٹی ایف سی چودھری ذوالفقار احمد، ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر مارکیٹنگ منزہ جوید، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی مہر ملازم حسین اور دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے رمضان بازار میں ایشیا گلنوز کا اسٹال، ایگریکلچر، پرائس شاپ، آٹا، چینی، بیف، مٹن، چکن اور دیگر ایشیا ضرورت کا اسٹال بنائے جائیں گے، جہاں ایشیا ضرورت وافر مقدار میں موجود ہو تاکہ عوام الناس ریلیف حاصل کر سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز محمد زبیر عباسی نے بتایا کہ ضلع بھر میں 12 رمضان بازار کیمپ کیے جائیں گے۔ بہاولپور سٹی تحصیل میں ماڈل بازار، گرافٹ بازار، میرے والی گلی، جبکہ صدر بہاولپور کے علاقہ خانگاہ شریف میں رمضان بازار کیمپ کیا جائے گا۔ اسی طرح احمد پور شرکیہ کی تحصیل میں محمود پارک، نظم مرید شہید پارک اور شریف مبارک پور میں کیمپ ہوں گے۔ ضلع ازمان میں اولڈ آفس میونسپل کمیٹی، رول ہیلتھ سینٹر راج گنج کے قریب خیرپور ٹامی علی، ارحم سینٹر میں حاصل پور تحصیل میں ماڈل بازار،
हासिलपुर नाजिर वेंट्री अस्पताल और चूने वाला में कैंप किया जाएगा। उन्होंने रमजान बाजार में ऐसा खुनोज आम मार्केट से कम नकल फरोख्त किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल ने बताया कि रमजान बाजार में आटे के स्टॉल कायम होंगे, जहां 10 किलोग्राम आटे का थैला 450 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने बताया कि रमजान बाजार में चीनी 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। एग्रीकल्चर मार्केट ने बताया कि रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर कैंप की जाएगी, जहां आलू। अब आपको बताएं कि लाहौर में एक बार फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद कहते हैं 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साबिर, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से। आप देखें, जिस तरह से कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हो गया है और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो डीआईजी ऑपरेशन का कहना है 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, जबकि इसमें 10 एसपी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और तकरीबन 30 से ज्यादा डीएसपी जो है वो वहां पर मौजूद हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देखने के लिए आते हैं, उनको जो है वो वॉक थ्रू के गेट से गुजार के और जामे तलाशी के बाद जो है वो ग्राउंड में जाने की इजाजत दी जा रही है। आज जिस तरह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो शुरू हो गया है, पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि जब मैच खत्म होगा तो बात की जाए कि ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी जो है वो बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जिस तरह से गाड़ियां जो आती हैं मैच देखने के लिए, लोग लेके आते हैं, उनको भी जो है वो क्लियर करने के लिए रास्ते जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं और ट्रैफिक वार्डन की जो है वो ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि जिस तरह से मैच खत्म होगा और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जो है वो क्राउड था लोगों का, उनको जो है वो वहां से मुंतशिर किया जाएगा और अपने अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा। जी अच्छा वसीम साहब, ये भी बताइएगा, जब मैच खत्म होता है, शायकीन क्रिकेट बाहर जाते हैं तो रश काफी लग जाता है, रोड पर ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो उसके बारे में क्या इंतजाम किए गए? कोई रूट प्लान दिया गया? देखिए, रूट प्लान दे दिया गया है और सीटीओ लाहौर जो मुंतजर मेहंदी है, उन्होंने जो है वो जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है और पार्किंग के करीब जो है वो ट्रैफिक वार्डन को तैनात कर दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता 200 लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से 10-10, 20-20 करके जो है वो गाड़ियां निकाली जाएंगी ताकि जो है वो लाहौर की सड़कों पर रश ना लगे, जिस पर जो है वो सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहंदी खुद भी वहां पर मौजूद होंगे और सेक्टर इंचार्ज को भी जो है वो हदायत जारी कर दी गई है कि यहाँ। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं आजिम भट्ट की रिपोर्ट। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। इस बारे में वकला बरादरी का क्या कहना था, आइए देखते हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। लाहौर हाईकोर्ट की वकला बरादरी ने इस सेमिनार में भरपूर शिरकत की है। उनका कहना था कि ऐसे सेमिनार का इनाकाद खुशाइंद है। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें लाहौर बार वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। इसमें वकला बरादरी का कहना था कि ऐसे सेमिनार का इनाकाद खुश आइंद है और वकला बरादरी की जानिब से भरपूर शिरकत का इजहार भी किया गया। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। इससे कबल भी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ऐसे सेमिनार मुनक्किद किए गए, जिसमें वकला बरादरी भरपूर शिरकत करती थी और अब दोबारा से लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से
सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। वकला बरादरी ने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे और इसके अलावा वकला बरादरी का कहना था कि ऐसे सेमिनार का इनेकाद खुशाइंद है। आपको बताएं, इससे कबल भी सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी की भरपूर तादाद ने शिरकत की और अब भी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। वकला बरादरी का कहना था कि ऐसे सेमिनार खुशाइंद हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। इसी बारे में वकला बरादरी का मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। है जो विजडम है, जो उसको बढ़ाया जाए और उसको नॉर्मल लॉ को नहीं है, दुनिया में जो तरक्की कर रही है लॉ की वो तालीम हासिल की जाए। उसके लिए बाहर बेशुमार मौके मौजूद हैं और बार एसोसिएशन नेक्स्ट टाइम कंसल्टेंट जो है, इसने जो अपना ये इवेंट किया है, उसमें बार का सदर सेक्रेटरी और दोनों शामिल हुए। ये मैसेज ये कन्वे करना इनका मकसद है कि तमाम लोग जो है वो न सिर्फ मुल्क से तालीम हासिल करें बल्कि मुल्क से बाहर भी तालीम हासिल करके अपने मुल्क में आके और बाहर भी अपना नाम रोशन करें। और लॉ की जब इंटरप्रिटेशन सही होगी तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक होगी। और जब बाहर ये तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ से असूल व कानून और ज़ाब्ते भी सीख के आएंगे और उस पर अमल दरामद भी सीख के आएंगे और एक मुल्क जो है तरक्की करेगा। वक्त की ज़रूरत है कि लॉ को पढ़ा जाए, समझा जाए और उस पर अमल भी किया जाए। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज तो आपकी सारी कंट्रीज में अवेलेबल हैं। यूके में, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। अगर हम इससे बाहर भी चले जाएं तो यूरोप में भी, जहाँ पे मास्टर्स के कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फॉर LLM। लेकिन जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जिसे हम बोलते हैं वो यूके जनरली होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे मास्टर्स 1 ईयर का होता है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा होता है। दूसरा उसका बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि उसका लीगल सिस्टम यूके का इट इज़ मोर रेलिवेंट टू व्हाट इज़ इन पाकिस्तान। जहाँ तक बात है ऐसे लॉयर्स की जो कि खुद अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडी प्लान्स एंड ऑल दैट, बेशुमार इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आज भी हमने इनिशियली उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की थी। आपको पता होगा US हमें फुल ब्राइट देता है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ से रिलेटेड स्कॉलरशिप है, शिवनिंग होती है। हमारी HEC बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेल करवाने के लिए हमें ऑप्शंस देता है हमारे स्टूडेंट्स को। उसके बारे में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। लेकिन आपको आइडिया होगा कि स्कॉलरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट स्टेप का असल मकसद यही है कि हम सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करवा सकें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके लिए क्या गोल्स आपको सेट करने पड़ते हैं, कौन से टारगेट्स आपको अचीव करने पड़ते हैं जिसकी बेसिस पे आप एलिजिबल होते हैं। एकेडमिक के साथ बहुत सारी इंटर्नशिप्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो कि आपको स्कॉलरशिप्स में आगे असिस्ट करती हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा हम उन्हें भरपूर कोशिश करेंगे कि फुल ब्राइट और जितनी भी बेशुमार फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनके हवाले से हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सर, पहली बात यह है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थोड़ी थी। हमारे जो लॉयर्स हैं LLB के बाद उनको ऑप्शन नहीं मिलता था आगे कहीं पढ़ने का, तो LLM के ऑप्शंस हैं अवेलेबल। UK में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और इसके अलावा और कंट्रीज़ में भी हैं। सबसे बेहतर LLM जो है हमारे वकला के लिए वो UK का बनता है, क्योंकि लीगल सिस्टम सेम है। हमारा लॉ जो है वो UK के लॉ से ड्राइव हुआ है, तो मोर और लेस सेम लॉ सिस्टम्स हैं। यहाँ से जो LLB करके LLM के लिए UK जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए सेटलमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और LLM के बाद वो वापस भी आ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ से जो LLB करके LLM के लिए जाते हैं वो बार का एग्ज़ाम भी वहाँ पे देते हैं, बार का कोर्स करते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं तो एज ए बैरिस्टर पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सारे ही जानते हैं कि जब आप वापस आते हैं और बैरिस्टर का एक दफ़ा आपके नाम साथ लग जाता है तो आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सर, हमारी कोशिश ये होती है कि बेस्ट पॉसिबल चीज़ या प्रोडक्ट जो है, जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हों कम से कम प्राइस में। उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हों। नॉर्मली UK की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो LLM का कोर्स जो है वो 14,000 पाउंड से 18,000 पाउंड
उसकी फ़ी बनती है। हम लोग स्कॉलरशिप्स के बाद जो इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं वो 9500 पाउंड सिर्फ पाकिस्तानी बनते हैं। जो टोटल कॉस्ट डिग्री की है वो कोई 23-24 लाख बनती है। और इसके आगे जैसा मैंने पहले भी बताया कि वर्क परमिट और वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तावन से लाहौर हाईकोर्ट में वकला को बैरून ममालिक में LLM कराने के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में कंपनी ने वकला को बैरून ममालिक में LLM कराने के हवाले से बेहतरीन आगाही दी। कैमरामैन हमाद हाशमी के साथ आजम भट्ट। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको अहम खबर देंगे कि एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली ने सस्ती गाड़ियों के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए फ्रॉड केस का फैसला सुना दिया। जेल हुकाम ने मरकजी मुलजिम शफीक हाली समेत 2 मुलजिमान को एहतसाब अदालत में पेश किया। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली ने सस्ती गाड़ियों के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए फ्रॉड केस का फैसला सुना दिया। जेल हुकाम ने मरकजी मुलजिम शफीक हाली समेत 2 मुलजिमान को एहतसाब अदालत में पेश किया। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज साकिब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भट्ट, बताइएगा एहतसाब अदालत ने क्या फैसला सुनाया है? जी बिल्कुल अहमद, आज एहतसाब अदालत में शहरियों से सस्ती गाड़ियों के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए फ्रॉड केस का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत नंबर 1 के असद अली ने हाली मोटर स्कैंडल केस की समाअत की। नैब की तरफ से 2019 में मरकजी मुलजिम मोहम्मद शफीक हाली पर सस्ती गाड़ियों के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए फ्रॉड का रेफरेंस दायर किया गया था। मुलजमान ने शहरियों को सस्ती गाड़ियां दिलवाने के नाम पर एडवांस रकम जमा करवाकर 4.5 करोड़ रुपए से महरूम करने का इल्जाम है। एहतसाब अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए मुलजमान मेहर मोहम्मद शफीक हाली और मोहम्मद आजम को 8 साल कैद और 5 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जेल हकाम की तरफ से मरकजी मुलजम शफीक हाली समेत 2 मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। मुलजमान के वकला ने नैब के तफ्तीशी अफसर जियाउर रहमान से बयान पर जिरा मुकम्मल की, जबकि अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद करने और जिरा मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। जी एहतसाब अदालत की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। साकिब भट्ट, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 297 HR के करीब टायर फटने के बाद मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 की टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में 8 साला बच्चे के नाले में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। रेस्क्यू टीम ने बच्चे की नाश को नाले से निकाल लिया। सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू के 20 एहलकारों ने हिस्सा लिया। 8 साला अहमद शादी की तकरीब के बाद वैन में बैठते हुए फिसलकर नाले में जा गिरा था। उमरकोट की तहसील कुनरी में नशे की लत में मुब्तला नौजवान मोहम्मद खान मकरानी ने नशे के लिए रकम ना देने पर अपनी बहन समीना मकरानी को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे समीना शदीद जख्मी हो गई और अपनी मदद आपके तहत मुतल्लिका अस्पताल कुनरी पहुंची। मुतासरा खातून का कहना है कि मेरा भाई नशे की लत में मुब्तला है, इसने आज नशे के लिए पैसे मांगे, मैंने पैसे देने से इनकार किया तो मुझ पर बहिमाना तशद्दुद किया, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधाकिशन इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान के हमरा मौजा रख अनायत में कार्रवाई करते हुए 131 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर माहिन फातिमा का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। जिले इंतजामिया सरकारी जमीन का चप्पा चप्पा वागुजार करवाएगी।
कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल की जेर सदारत गंदम खरीदारी मुहिम बारे इंतजामी इजलास मुनक्किद हुआ। गंदम खरीदारी मुहिम के अहदाफ मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इकदामात बुरुएकार लाए जाएंगे। तफसीलात बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन टैड मोहम्मद जफर इकबाल की जेर सदारत गंदम खरीदारी मुहिम बारे इंतजामी इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन टैड मोहम्मद जफर इकबाल ने इजलास में खिताब करते हुए हिदायत दी गंदम खरीदारी मुहिम के हदफ मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इकदामात बुरुएकार लाए जाए। उन्होंने कहा कि महकमा फूड के इजाजतनामे के बगैर गंदम की बैनुल ज़िलाई तरसीह पर पाबंदी आयद होगी। गंदम खरीदारी मुहिम के हदफ मुकम्मल न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू मार खालिद अहमद, एडिशनल कमिश्नर शमालात सैयद तारिक महमूद बुखारी, डिप्टी डायरेक्टर फूड अदनान बदर और दीगर अफसरान मौजूद थे। इजलास को बताया गया कि बहावलपुर डिवीजन के लिए 7,80,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया। जिला बहावलपुर के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम, जिला बावलनगर के लिए 3,40,000 मेट्रिक टन और जिला रहीमियार खान के लिए 1,40,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी हदफ मुकर्रर किया गया। इजलास को बताया कि बहावलपुर डिवीजन में 72 सेंटर्स पर गंदम खरीदारी मराकज कायम किए जाएंगे। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।